कि हम ज्यादा से ज्यादा जान सके मीनाक्षी मैम के बारे में। सो थैंक यू रहमान जी। आज के जो हमारे ट्रेनर है, शी इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट बिलीव्ड ट्रेनर्स ऑफ JCI Zone 8 एज वेल एज JCI इंडिया। अगर उनकी अचीवमेंट्स की बात करें, उनके पूरे बैकग्राउंड की बात करें, तो शी इज अ फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ कला ट्रेनिंग एकेडमी एंड डेवलपमेंट कंपनी and is very highly acclaimed and successful life skill trainer with a rich and diverse experience across various segments. She has been associated with many corporates, big and small companies, educational institutions, organizations, NGOs for their training needs. She has a master of emotional quotient based training as well as has conducted 2,500 programs across the globe. She is one of the most creative trainers around right now, and owing her success to her psychology education and Junior Chamber International, as we all are. And she believes in spreading smiles, which we have already seen, and one of the most beloved qualities of our trainer today. Her enthusiasm is often contagious, and the energy she brings to the training hall is simply exuberant. Talking about her training experience, she has participated as a representative of India among 40 countries in the Asia Pacific Children's Convention. In International Workshop for Leadership at Nepal, she has been a pilot faculty for esteemed National Training Program Jasmine in the year 2014, 15, 16, 17, as well as 18 in Rajkot, Jalandhar, Kota, Hyderabad, and Gwalior, respectively. She has been a pilot faculty for RYLA, a Rotary Club initiative, twice in Udaipur and Kota. She has conducted more than 2,000 training sessions for parents and teachers in various schools and has been a head coach for Pehchan 2012, a national level event for women. She has been a pilot faculty for UDAN, a state level special workshop for soft skills. She has been a head coach for all Gujarat training in public speaking, a head coach for Kumar, which is a national level program for colleges. She has been associated with Junior Chamber International, South Gujarat Chamber of Commerce, Lions Club, Rotary Club, and Business Network International, and many more. Now, so much training experience comes with many accomplishments as well. So talking about her accomplishments, she has been awarded Outstanding Trainer of the Country by JCI India, National Trainer in the year 2011 through JCI India. She has successfully completed Presenter course of JCI. She has graduated Nalanda from JCI India and also got Outstanding Participant Award in the same. She has graduated Academy of Business, Leadership and Excellence from JCI India. She has been a Senior Director Consultant and Regional Advisory Board member of BNS Surat, has been awarded the Rajasthan Ratna Award for Events and Builder Association of Surat, awarded as Best Launch Director of BNS Surat, and her videos of family relations and bonding are seen all over the world. All the achievements that we talked about, she gives the credit of her success to her husband, Mr. E.P. Bhatnagar, and her children, Siddharth, Junali, and Rishika. So with a huge round of applause, let's welcome our today's trainer, JC Meenakshi Bhatnagar. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Saurabh, for such a wonderful introduction. बहुत अपने बारे में सुनकर भी अच्छा लगता है कभी कभी, राइट? बट क्रेडिट गोज टू दिस। हमको तो ताज्जुब हो रहा था कि ये लिस्ट खत्म कब होगी या नहीं होगी, कि आज के ट्रेनिंग में हम सिर्फ लिस्ट ही सुनेंगे, ट्रेनिंग नहीं सुनेंगे। Thank you so much, but this credit goes to this wonderful organization. I owe all my success, जो भी आज हम हैं यहाँ पर बात कर पा रहे हैं, just because of this beautiful Junior Chamber International, this organization. And I have got so many good friends like family. यहाँ पर बिंदु मैडम हाजिर हैं, आशीष बैठे हैं, आशीष हाजिर है, हेमा है, आपके पास प्रेसिडेंट सौरभ, they are all like मतलब I really want to thank JCI सूरत सिटीजन में आना यानी ऐसा लगता है कि अपने घर में आना, because यहाँ पे हमारी बहुत नजदीकी फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं। अमित को कितने समय से पहचानते हैं, कितना अच्छे से जानते हैं, बात करते हैं। रहमान इज लाइक माई सन since so many years, बहुत जिद करता है, बहुत डांट भी पड़ती है, बट फिर भी रहमान की बात ही अलग है, राइट? Saurabh has trusted us in our training capacity also and joins us so many times. Vishal से मिलना
हुआ है, विशाल के ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है. Like I'm so thankful to be here. Oh my God, Supal Talati has also joined. Supal, I love you for your communication skills. I really admire you for that. So friends, चलिए आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं. Is my video clear and voice clear? I really want to ask you that. Yes, ma'am. Yes. Both of those are. Yeah, Both Yeah. are clear. clear voice. Okay. Before we go Fine. ahead, Crystal clear. just one recognition, ma'am. I would like to recognize the presence of past zone president of zone 11 Goa, Satish Rajmane. He is with us today. So thank you, Satish, sir, for Thank joining you us. so much. Thank you so much, sir, for your esteemed presence here. Thank you very much. Thank you. Look forward. Yes, and we have Vaishali also here, has joined from Bharuch. Lot many people, मैं सबको screen पे नहीं देख पा रही हूँ, but I'm really thankful for all of you, for all the people sitting in the room. So friends, चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं. Actually सेशन नहीं, ये मेरे बहुत दिल के करीब टॉपिक है. हम सबके रादर, see we all are like family, और हम सब बहुत एक दूसरे के करीब हैं. थोड़ा सा लाइफ में इधर उधर होते रहते हैं, थोड़ा सा कभी कंफ्यूज होते हैं या कभी कुछ कहीं अटकते हैं, भटकते हैं, बट वापस जाकर के फिर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. थोड़ा सा डिफरेंट पहलू आज लेकर के आई हूँ. फ्रेंड्स, इस पेंडेमिक के पहले जब मैं लव यू जिंदगी कंडक्ट करती थी तो उसका कंटेंट कुछ और होता था, लेकिन अब इस दौरान हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है. जिंदगी के तरीके बदल चुके हैं, जिंदगी का मीनिंग बदल चुका है, और बहुत सारी क्लैरिटी हमारे सबके दिमाग में आ चुकी है बहुत सारी चीजों को लेकर के. सो आज का शायद कुछ बातें आपको अलग नजर आएंगी. सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप सब कनेक्ट कर सकें. पूरी फ्रीडम है आपको कि कहीं भी अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो जस्ट टेक इट एज अ शेयरिंग सेशन और बिल्कुल अपना हाथ खड़ा करके शेयर कीजिए. आई एम ऑल फॉर यू, राइट? यहाँ पर सबसे पहले इस बात की शुरुआत, इस टॉपिक लव यू जिंदगी बहुत खूबसूरत शब्द है, बहुत अच्छा गाने हैं इस टॉपिक के ऊपर. कई बार कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने भी लोगों के देखे होंगे, सुने होंगे, रिलेटेड विद लाइफ, एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल दैट वी ऑल नो. सबसे पहले फ्रेंड्स, लाइफ की शुरुआत में सबसे पहले एक 4 लाइन कहना चाहूंगी. ये छोटी छोटी 4 लाइन है, मैं बार बार आप लोगों से कहती रहूंगी. कुछ मेरी है, कुछ मेरी नहीं है, पर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, राइट? सो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि जब हम यहाँ पर ये 47 लोग इस रूम में बैठे हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. मेरी लाइफ जो कि बहुत खूबसूरत है, और मेरी जिंदगी जिसको मैं अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ. हम सिर्फ खुद की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ना हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर के कुछ बात कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले एक सोच दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो. न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो. ये जिंदगी आपकी है जनाब, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो. और वही रिक्वायर्ड है आज के इस सेशन के लिए कि हम सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे. ये जिंदगी हमारी है, इसे हम अपने मस्त साइड. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. और हमेशा सबसे पहले ईश्वर का उस धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया इस दूरियों की सिचुएशन में भी, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी, या कहिए सेमी लॉकडाउन की सिचुएशन में, आज ईश्वर ने हमें मौका दिया कि हम एक साथ सबके करीब आ सकें. तो ईश्वर का धन्यवाद. सबसे पहले कि हमारे सबके पास में एक 2 कान है, 2 आंखें हैं, एक दिमाग है, बोलने के लिए मुंह है, बहुत कुछ है ईश्वर का दिया हुआ, जिसके कारण आज हम एक दूसरे के साथ में बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड है. और हाई चैम्बर इंटरनेशनल एक संस्था है जो हम सबको बांधे हुए है, जुड़े हुए हैं, राइट? सो एट दिस ब्यूटीफुल पॉइंट आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन, एंड मैं आपसे पूछना जानना जरूर चाहूंगी कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं या नहीं. यस, कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. सो लव यू जिंदगी. मैं बीच बीच में स्क्रीन को स्टॉप करूंगी और खुद आपके सामने आके डायरेक्ट बात करूंगी, बिकॉज मैं स्क्रीन शेयर करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट यस, बहुत
क्रिस्प आपके लिए डिलीवर कर सकें, वो पूरी कोशिश है। सो लव यू जिंदगी, मेक योर लाइफ फुल ऑफ लाइफ। वैसे भी ये हमारा मोटो है, विश्वास है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी खुद ही बनाता है। और सबसे बड़ी बात, खुद को प्यार करना और खुद को खुश रखना खुद की जिम्मेदारी है दोस्तों। कोई दूसरा नहीं आएगा हमें खुश रखने के लिए, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है और मुझे ही पूरी करनी है। यहाँ पर फिर कुछ बोलती हूँ, कई बार हम किसी सिचुएशन में, जैसे आजकल कभी कभी लग रहा था बीच में, ओ माय गॉड हम कितने अकेले हो गए, क्या करें, किसी से मिल नहीं पा रहे। तो देखिए, नजरिए का फर्क है, और या तो कहिए बोलने की स्टाइल का या सोचने की तरीके का फर्क है। एक तरफ हम सोच सकते हैं कि काफी अकेला हूं या अकेला ही काफी हूं, राइट? काफी अकेला हो गया हूं मैं, या मैं अकेला ही काफी हूं आगे बढ़ने के लिए। तो उस नजरिए से हमें अपनी जिंदगी को देखना है, जिंदगी के बदलाव को देखना है और उसे दिल से स्वीकार करना है। सो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑब्जर्व लाइफ ऑन दीज पैरामीटर्स। कुछ मापदंड हैं जिनके ऊपर लोग अपनी जिंदगी को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, ज्यादातर लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज नॉर्मल पीपल जो शायद इस तरह के सेशंस बहुत अटेंड नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम, अपना करियर और फाइनेंस, कितना पैसा है, उसके हिसाब से, उस मापदंड के हिसाब से अपनी जिंदगी को देखते हैं। कुछ लोग अपनी हेल्थ के हिसाब से अपनी लाइफ को देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि सब सही है, हर एक की सोच अलग है, उनके हिसाब से, उनके नजरिए से वो सही या गलत है, हमें उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं करना है, राइट? कुछ लोग पर्सनल डेवलपमेंट और लर्निंग को ही अपनी जिंदगी मानते हैं, हमेशा आगे बढ़ना और सीखने को ही अपनी जिंदगी मानते हैं। और कुछ लोग सिर्फ लोगों से बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप रखें और उसके साथ, लोगों के साथ आगे बढ़े, उसे अपनी जिंदगी मानते हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए ये जिंदगी क्या है। लेकिन हम सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज स्पिरिचुअल, योर रिलेशनशिप विद द ग्रेटर पावर। यस फ्रेंड्स, उस ईश्वर की, उस ईश्वरीय शक्ति के साथ हमारा क्या रिश्ता है, उसको भी कोई लोग अपनी जिंदगी मानते हैं। तो मोटे तौर पे अगर अपन देखें तो अपनी जिंदगी के मापदंड इन 5 चीजों के ऊपर बहुत सारे लोग आधारित करते हैं। वन इज वर्क, हमारा करियर, हेल्थ, हमारा सीखने का तरीका, हमारी सोशल रिलेशनशिप, लोगों के साथ रिश्ते, और हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता। लेकिन फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखती हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड, कहीं भी आप दुनिया में हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन योर लिस्ट शुड इंक्लूड दिस फॉलोइंग ऑल्सो। खाली वो 5 चीजें भी जरूरी थी, बट साथ में कुछ और चीजें ऐड करके एक बार इस लिस्ट को फिर से देखते हैं। यस, डेफिनेटली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब समझ चुके हैं। फैमिली, यस फ्रेंड्स, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, परिवार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और परिवार हमारी शक्ति है, स्ट्रेंथ है। अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी से डर नहीं लगता। फ्रेंड्स, फैमिली का वैल्यू हम सब समझ चुके हैं। ये पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर जो लोग भी फैमिली के साथ थोड़ा सा गैप रखते थे या डिटैच्ड रहते थे, उन्हें हर चीज समझ में आ गई है। फेथ इन गॉड, ईश्वर में आस्था। दोस्तों, एक बात कहती हूँ, हमारे अंदर भी ईश्वर है। मैं कहती हूँ, ईश्वर में आस्था रखना सबसे पहले जरूरी है, खुद पे विश्वास रखना। लेकिन खुद के तरीके बदलने पड़ेंगे थोड़ा सा उस विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्यार, लव, यस फ्रेंड्स, वो लव, चाहे वो एक माँ और बच्चे का प्यार हो, वो भाई बहन का प्यार हो, वो पति पत्नी का प्यार हो, वो प्रेमी प्रेमिका का प्यार हो, पर प्यार बहुत जरूरी है, या वो 2 दोस्तों का प्यार हो। हमारी लाइफ में प्यार का बहुत बड़ा महत्व है। फ्रेंड्स, दोस्त, आप जैसे साथी जो हमें लेके साथ चलते हैं, जो हमें हर रास्ते पे हमारे लिए एक एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म और एनर्जी का कारण बनते हैं दोस्त, उन दोस्तों की हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी जरूरत है। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स लाइक दिस। और यहाँ इस रूम में भी मेरे वो दोस्त मौजूद हैं। एक पर्पस, एक उद्देश्य। यस फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी लाइफ का? कुछ तो एक उद्देश्य होना चाहिए। शायद इन चीजों को हम बाद में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत समय नहीं है, लेकिन कम समय में जितना हो सके एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बट फ्रेंड्स,
पर्पस हमारी लाइफ का जरूर होना चाहिए। रादर मैं कहती हूँ हर मिनट का पर्पस होना चाहिए, हमारी कहीं हर बात का एक उद्देश्य होना चाहिए, हर काम का एक पर्पस होना चाहिए। बिजनेस के पर्पस की बात हम बहुत सारी करते हैं फ्रेंड्स, बट लाइफ का पर्पस एंड बिजनेस का पर्पस एक ही हो वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। पैशन, जुनून, जो भी करें एक पैशनेट वे में करें, जुनून के साथ करें, दैट आई हैव टू डू इट द बेस्ट। अगर रिश्ता है तो सबसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए। प्यार करो तो दिल से प्यार करो, एकदम जुनून के साथ करो। मेरी फैमिली सबसे अच्छी होनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, दैट पैशन इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मैं किसी से कुछ भी बात करूं, वो बात भी मैं पैशनेट तरीके से अगर करती हूँ तो मैं उनके साथ दिल से जुड़ पाती हूँ। अदरवाइज रिश्ते दिमाग तक आकर के फिर नीचे नहीं जा पाते हैं, दिल तक पहुंचना थोड़ा भारी हो जाता है। यस, एजुकेशन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना, चाहे सब कुछ बंद रहा लेकिन एजुकेशन चालू रही, ऑनलाइन हम बैठ करके अपना ज्ञान बढ़ाते रहे, हमारे बच्चे पढ़ते रहे, कुछ भी रुका नहीं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ फ्रेंड्स। बट नए स्पेसिफिकेशन लाइफ के थोड़े से बदल गए हैं, राइट? नई लाइफ को मैं दो चीजों में डिफाइन करती हूँ, न्यू स्पेसिफिकेशंस ऑफ लाइफ। अभी कई बार लोगों को लगता है मैडम ये वाली सारी चीजें हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीजें थी, हैं और हमेशा जिंदगी भर रहेंगी, हर एक की जिंदगी में रहेंगी। बट आज हमें यहाँ पर इस सेशन में दो नए स्पेसिफिकेशंस लाइफ के समझने जरूरी हैं। लाइफ को दो तरीकों में, लाइक different types of life, I can say different types of life. One is hi-fi life which was before 2020. हम सब एंजॉय कर रहे थे, बैंक्वेट्स में शादियां हो रही थी। अमित और रहमान हमारे पास दो इवेंट के एकदम दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। इट वाज एक्चुअली हाई-फाई वेडिंग्स। यस, हम लोग बढ़िया शॉपिंग कर रहे थे, मॉल्स में घूम रहे थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, लोगों की बड़ी गाड़ियां देख करके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी हो जाते थे, घर का इंटीरियर कैसा हो, एवरीथिंग वाज लाइक, हमारी सोच थोड़ी सी हाई फाई सोच हो रही थी, है, आज भी है और फिर से वो सोच वापस आएगी फ्रेंड्स। लेकिन इस समय थोड़ा सा इतना ही समझते हैं दैट बिफोर 2020 हाई फाई लाइफ थी एंड आफ्टर 2020 इट इज वाईफाई लाइफ। यस, हाई फाई से वाईफाई तक का रास्ता हमने बहुत ब्यूटीफुली तय किया है। अब दोनों लाइफ की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन आज हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं या जो फ्यूचरिस्टिक है फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वाईफाई लाइफ हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कहाँ हम लोगों को कहते थे, राइट, आई वुड लाइक टू स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, कहाँ मैं ही लोगों को समझाती थी बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, आज बच्चे पूरी पढ़ाई ही मोबाइल पे कर रहे हैं। कैन वी डू दैट टुडे? सारे मायने बदल गए हैं। जहां पर हम लोग लोगों को कहा करते थे अरे यार इंटरनेट इंटरनेट पूरे टाइम क्यों ऑनलाइन घुसा रहते हो, आज हमारा पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है। कैन वी अवॉइड दिस नाउ? क्या हम इस चीज को नाउ इग्नोर कर सकते? नो, नाउ वी हैव टू रियली रियलाइज दैट क्या है ये वाईफाई लाइफ और ये कितना जरूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का, और हमारी लाइफ को लवेबल बनाने के लिए, लव यू जिंदगी कहने के लिए, डियर जिंदगी करने के लिए ये वाईफाई लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है दोस्तों। एंड वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, जब अपने बच्चों से, अभी वैसे हम लोगों ने कहना बंद भी कर दिया है, बट ये वाईफाई लाइफ कोई बुरी नहीं है। शायद इस सेशन के एंड तक हम लोग कहीं ना कहीं, आई एम नॉट सेइंग फुली बट समवेयर एटलीस्ट हम लोग कन्विंस हो जाएंगे कि वाईफाई लाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी जिंदगी में। हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत वक्त लगेगा, हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ समय ही जिंदगी बदल देगा। हम देखते रह गए, हम कुछ नहीं कर सके, सुपर पावर्स दुनिया की फेल हो गई और ईश्वर ने 2 मिनट में जिंदगी बदल के रख दी। राइट, सब कुछ चेंज हो गया, हम लोग चेंज पे सेशंस ही लेते रह गए। राइट, 1 मिनट में कुदरत ने अपना जादू दिखाया और सब कुछ अपने आप ही लोगों को बदलना पड़ गया। लाइक हम बहुत कहते थे, मैं भी बहुत सारे सेशंस लेती थी, चेंज इज वन थिंग विच इज परमानेंट, बट कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया था कि सडनली कैसा चेंज होना पड़ता है, लाइफ किस तरह से सडनली चेंज हुई। हम सब ये चीज देख चुके हैं फ्रेंड्स। हाई फाई लाइफ वाज वेरी मच हैपनिंग,
इंडिविजुअल चॉइसेस थी हमारे पास, फुल ऑफ एक्साइटमेंट था हमारे पास, और हम इंडिपेंडेंट थे कुछ भी करने के लिए. वी वर रियली रियली एंजॉयिंग आवर इंडिपेंडेंस. आज सुबह घड़ी देख करके आज हम निकल सकते हैं और घड़ी देख करके हमें घर पे वापस आना पड़ता है. इवन मेरा अपना बिजनेस, हमारा अपना बिजनेस भी हम कब ओपन करेंगे शटर और कब क्लोज, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट फॉर दैट ऑल्सो, राइट. सो वो हाई फाई लाइफ जो थी हमारी, वो सब कुछ अब पूरी तरह से बदल गई है. यस, बट वाईफाई लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल दोस्तों. देखते हैं इसकी क्या ब्यूटी है. दिस इज वर्ल्ड वाइड एंड वर्दी. आज दुनिया से कनेक्टेड है हम. क्यों इस लाइफ को ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे हम? वी आर कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड एंड इट इज रियली वर्दी विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग. हम दुनिया से जुड़ गए हैं, right? Immense opportunities for each one of us. I know many of the females because I help them like their hobbies are converting into business. मैं उनको हेल्प करती हूँ इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए, एवरीथिंग, राइट. आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन. नाउ आज की लाइफ में, इस जिंदगी में हर एक के लिए इमेंस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. फ्रेंड्स, जो लेडीज कुछ भी नहीं कर पाती थी, आज वो घर पे बैठ करके व्हाट्सएप के थ्रू कितना सारा पैसा कमा सकती हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं, अपनी जो रसोई की बातें वो दूसरों के साथ शेयर करके तारीफ इकट्ठा कर सकती हैं. दे आर लर्निंग स्किल्स, दे आर लर्निंग कंप्यूटर्स, दे आर वर्किंग ऑन Zoom, एंड ऑन टॉप ऑफ इट everyone has immense opportunity even for child. आज मैंने एक वीडियो देखा जहां पर 5 साल की लड़की कुछ गा रही है और मदर ने उसको शेयर किया. Isn't it amazing? कैसे पॉसिबल हुआ? Because of this Wi-Fi, because of this internet, right? We are experience all those things. आज उस बच्ची के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि उसको हजारों लोग देख सकते हैं. इनसाइटफुल है, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं इस जिंदगी में. फ्यूचरिस्टिक है, फ्लेक्सिबल है. यस फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, Zoom का सबसे बड़ा, वाईफाई लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा वरदान है प्लग इन प्लग आउट. यस, वी आर फ्लेक्सिबल. आज सुबह अगर मैं ग्वालियर में हूँ, कल मैं कोटा में हूँ, आज मैं नाडियाड में हूँ, अभी मैं सूरत में हूँ, परसों मैं कहीं और हैदराबाद चली जाऊंगी, राइट. इट इज सो फ्लेक्सिबल. आई हैव ऑल द इंडिपेंडेंस टू डिसाइड कि मुझे कब कहाँ जाना है, और मैं आराम से पहुंच जाती हूँ, एंड विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, राइट. It is very inspiring and informative. अगर हम चाहें तो, ये जो inspiring word है ना फ्रेंड, this is our choice. अगर हम इसको दुख में निकाल देंगे तो there is no end of it. लेकिन अगर हम इससे इंस्पायर होंगे that what all I can do, then it is amazing. This life is really really amazing. देखते हैं, impactful, insightful learning है हमारे लिए, फ्यूचरिस्टिक है, इंफॉर्मेटिव कितनी है, कहाँ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, सब कुछ हम जान सकते हैं जस्ट ऑन अ फिंगर टिप. बट नाउ फ्रेंड्स, हमारे अंडरस्टैंडिंग की बात आती है. नाउ कम्स व्हाट इज आवर लाइफ, और हमारी सोच में हमें उस लाइफ को किस तरह से जीना है. आज बहुत लोग बहुत डरे हुए भी हैं दोस्तों. बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं हमारे आसपास, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, बहुत जल्दी चले गए हैं. कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें अभी नहीं जाना चाहिए था, राइट. डर, फियर, क्या होगा, कब होगा, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा, सब कुछ अनसर्टेनिटी सी लगती है दोस्तों. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात कहती हूँ, फिर से मेरे को कुछ लाइनें बोलने का मन हुआ. सवाल ये नहीं कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं. कई लोग बोलते हैं वो चले गए लेकिन हमारे साथ ही हैं. सवाल ये नहीं कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं. सवाल ये है कि मृत्यु से पहले हम जीवित हैं या नहीं, राइट. पहले ही सोच सोच के बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली, फ्रेंड्स, लोग ठीक हो गए, और साइकोलॉजिकली दे वर सो डिप्रेस्ड कि वो चले गए. हमारा ऑर्गेनाइजेशन, कल हमारे 2-3 ट्रेनर्स आप लोग मौजूद थे. आर JCI जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम वेयर वी विल बी लाइक गिविंग पीपल इम्यूनिटी, पॉजिटिव इम्यूनिटी देने की कोशिश कर रहा है हमारी संस्था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में चले गए. फ्रेंड्स, विश्वास रखिए अपने ऊपर और इस दुनिया के ऊपर. फेथ इज लाइक वाईफाई. It is invisible, but it has the power to connect you
to whatever you need. विश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ एक छोटी सी पिक्चर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये 3 चिड़िया हैं जो एक तार को पकड़ के लटकी हुई हैं, और वो यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड है जो हवा में उड़ रही है, राइट? इट इज फ्री। और वो लोग कह रही है ओके, उन्होंने तार पकड़ा है, बट बिकॉज वो कह रही है नहीं नहीं, ही इज गॉट वाईफाई, इट इज गॉट वाईफाई, इसलिए वो इतना फ्री है, इतना आराम से है, हवा में है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फ्रेंड्स, इस दुनिया को हमें दूसरी नजर से देखना पड़ेगा। सबसे बड़े 3 डर हैं हमारी जनरेशन के। मैं भी अब अपने आप को लाइक इस जिसको कहते हैं ना कि ये इन जो अपन 2020 के बाद जो अपन रास्ते से निकल रहे हैं, यहाँ सबसे बड़े 3 डर हो गए हैं। एक तो स्लो वाईफाई, और एक ये जो घूमता हुआ वो गोला घूमता है ना, जब कुछ लोड हो रहा होता है, नॉट अपलोडिंग, स्लो लोडिंग एंड द लो बैटरी। बस ये 3 चीजें हमें अपनी लाइफ के लिए भी संभाल के रखनी है। वाईफाई यानी कनेक्टिविटी स्लो नहीं होनी चाहिए। किसी ने भी कुछ बात समझाई, उसकी अपलोडिंग भी स्लो नहीं होनी चाहिए, और हमारी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर हियर टू रीबिल्ड, रिचार्ज, री एनर्जाइज आवर ओन सेल्फ। दोस्तों, हमेशा कोशिश करिए कि ये 3 हमारी लाइफ में नहीं हो। वाईफाई में होंगे तो वाईफाई जुड़ जाएगा, वापस कनेक्शन आ जाएगा, वापस लोडिंग हो जाएगी, बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी, लेकिन हमारी अंदर के ये 3 चीजें जानी नहीं चाहिए। वी डोंट हैव टू लूज कनेक्टिविटी, अपलोडिंग इन आवर सेल्फ, लाइक हम अपने को थोड़ा सा इनपुट लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, एंड अपनी बैटरी को चार्ज करते रहना पड़ेगा। Now few tips to follow. उसके पहले आपसे कुछ छोटी छोटी चीजें शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, कई बार कहते हैं ना, मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड में बहुत मानती हूँ, लोगों को महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज कहते हैं ना, वो शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले इस लाइफ का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जितने भी चाहे टिप्स लीजिए, जितनी भी चाहे नॉलेज बढ़ाइए, जितनी भी आगे बढ़ना है तो बढ़िए, छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका तो मजा लीजिए, राइट? हमारे पास क्या है, थोड़ा लिस्ट तो करें, क्या क्या अभी भी मेरे पास है, थोड़ा देखें तो सही। शिकायत करने में बहुत सारा समय निकलता है दोस्तों। वो शिकायतें जितना हो सके कम करिए, और जितना हो सके जो मेरे पास है उसका मजा लीजिए। और एक बात कहूं फ्रेंड्स, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने नहीं लिखी है, कहीं पे पढ़ी और मैंने फिर लिख करके रखी कि माय गॉड, आई विल शेयर इट विद माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि इतना समय आ गया, ये क्या करें, एंड वी वर ऑल इन दैट माइंडसेट ओनली। 2020 में हम सब बहुत परेशान थे, हताश थे, लेकिन बहुत सारे लोग नए नए आइडियाज से आगे आए, एंड वी हैव अ वंडरफुल अमित, ही इज सिटिंग हियर। अमित came with so many beautiful idea, virtual events, virtual ये वो, लगा ही नहीं लोगों को कि क्या नहीं हो रहा है। क्या अमेजिंग मिड ईयर कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई, क्या अमेजिंग। यस, वी शुड डेफिनेटली गिव क्रेडिट। श्योर अमित, आई एम रियली लाइक आई फील रियली गुड अबाउट दिस। यू केम अप विद सो मेनी गुड आइडियाज, राइट? कहाँ से आए वो आइडिया? I am blessed that you are appreciating it. Thank you. Actually, you did a lot. फ्रेंड्स, जब हम विवश हुए, जब हम परेशान हुए, जब हम हताश हुए, तभी हमारे दिमाग में बैठे हुए, हमारे दिल में बैठे हुए ईश्वर ने अपना काम करना शुरू किया। यहाँ पर 2 लाइन कहती हूँ। पांडव भी बहुत विवश हुए थे जब महाभारत में उनके साथ जो भी हुआ, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी कि वो बहुत विवश हो गए। पांडवों से विवशता आएगी, लेकिन तभी तो हिस्से में श्री कृष्ण आएंगे। पांडवों के हिस्से में ही श्री कृष्ण भी आए, जिन्होंने उन्हें महाभारत जिताया। यस, विवशता तो देखनी पड़ेगी दोस्तों। थोड़ा सा हम पीछे गए, तभी तो छलांग लगाना पता चला। थोड़ा सा हम रुके, तभी तो पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है। थोड़ा सा हम ठहरे, तभी तो हमें एहसास हुआ कि तेज भागना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड सारे लोग, आज छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक, अपने ईश्वर को, उस जो कहते हैं ना कि वो पांडवों के साथ जिस तरह श्री कृष्ण आए, वो श्री कृष्ण ने हम सबके दिल में घर किया और हमें सबको नए रास्ते दिखाए। जो पिछले 2020 में सोच रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा,
आज सब बैठे हैं, सबका परिवार यूं ही चल रहा है, सब खुश हैं, सब अच्छे से हैं, नए नए तरीके ढूंढ चुके हैं अपने आप को, लाइक बियॉन्ड द बाउंड्रीज वी हैव ट्रेवल्ड। यस और नो? 100% यस। सब चल रहा है, क्या खत्म हो गया? कुछ भी नहीं, सब वैसा ही है। रादर हम ज्यादा क्रिएटिव हो गए, ज्यादा इनोवेटिव हो गए और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने की सोचने लगे। राइट? अगेन आई शेयर फॉर द टिप्स टू फॉलो, few tips I would like all of us to follow। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ भी कहती हूँ ना, देखिए हर चीज पहले खुद के ऊपर अमल करनी चाहिए, इंप्लीमेंट करनी चाहिए और तभी वो शेयर करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्न, बिंदु मैम से सीखा है ये चीज। बिंदु मैम कभी भी कुछ भी बात करते हैं, आई एम अ बिग, शी इज माय मेंटर, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर। वो बहुत थॉट क्लैरिटी है, वो कुछ भी कहती है ना, वो अपने ऊपर अमल करके कहती हैं वो बात। हमेशा याद रखिएगा, JCI Surat citizen, you are blessed with people like Bindu ma'am, Ashish bhai, Saurabh, Hema, they are amazing people. You have amazing seniors available with you. हमेशा मैंने बिंदु मैम से एक बात सीखी है, वो आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने हमको हमेशा, लाइक आई एम जूनियर टू हर इन JCI, बट उन्होंने कभी भी मेरी सफलता को, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एनकरेज किया, आगे किया, मुझे मौका दिया। आई वॉज नथिंग। जब मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आज हमें अपनी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और जब कोई कहे लव यू जिंदगी, तो वो हमारे उसमें, उसके दिमाग में हमारा बारे में नाम आए, तो वो बात है। आज मैं जब भी मेरे ट्रेनिंग करियर की बात सोचती हूँ ना, मुझे सबसे पहले बिंदु मैडम याद आती हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ जोन ट्रेनर बनी थी और बिंदु मैम ने मुझे अपने कॉलेज में सेशंस दिलवाने शुरू किए थे ऑन हर ओन रिस्क। उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी, बट मी, JC कमलेश ठक्कर, हम सबको जैसे वो स्टार्ट करके वो मोटिवेशनल पुश देने वाली हैं बिंदु मैडम। विदाउट हमको कभी उन्होंने रियलाइज नहीं कराया, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, बट शी डिड दिस ऑल, even to my daughter, to my son, for everyone she is creating opportunity for people। फ्रेंड्स, उनसे हमें सीखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है अरे ये मुझसे आगे कैसे जा सकते हैं, या इनकी मैं मदद क्यों करूं। दूसरे की सफलता को नहीं स्वीकार करेंगे तो वो ईर्ष्या बन जाएगी, और स्वीकार करेंगे तो वो प्रेरणा बन जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड बिंदु मैडम हैज बिकम अ मोटिवेशन फॉर सो मेनी ऑफ अस, राइट? हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपकी स्टोरी में कौन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस की स्टोरी में हैं, राइट? काउंट करिए कि कितने लोग जब अपनी स्टोरी शेयर करेंगे तो वो आपका नाम लेंगे। दैट इज व्हाट लाइफ, जो कहते हैं ना लव यू जिंदगी, उस जिंदगी को प्यार करने का मन होता है दोस्तों। सो फर्स्ट स्टेप टू फॉलो, वेरी वेरी सिंपल, इजी, शायद हम में से हर जना वो फॉलो कर रहा है। ईट टुगेदर एंड लिसन टू ईच अदर। नाउ खाना तो सब साथ में खा लेते हैं, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, लिसन टू ईच अदर, राइट? Again, I'll stop my screen sharing because इस समय में आपको, and I would put myself in, like from my side, I'm putting myself in gallery view। शायद mostly videos कुछ on है। Friends, क्या होता है जब हमसे कहा जाता है ना कि listen to each other, so we always listen to respond or react। जवाब देने के लिए बात सुनते हैं, yes or no? As a mother, जैसे ही मेरी बेटी कुछ, मम्मी मेरे को कुछ बोला है, हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो, immediately I will give an answer। अगर वो मुझे आकर के पूछेगी मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, तो मैं कहूंगी हाँ तो बैठ के ट्राई करो, समझो, बट आई विल नॉट लिसन टू हर फुली। फ्रेंड्स, वी हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड, लिसन टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक टू बी अंडरस्टूड। ऑलवेज रिमेंबर, बोलिए कि सामने वाला आपकी बात समझे, और सुनिए कि आप सामने वाले की बात समझ सके। वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीवेयर। अभी यहाँ तो मैं लगातार बोल रही हूँ, आप लोगों को सुन नहीं रही हूँ, और आप लोगों को की मजबूरी है मेरी बात को समझना। बट फैमिली में, घर में, जब भी हम हो, जब भी हम आपके आसपास बच्चे हों, फैमिली मेंबर हों, ट्राई टू लिसन टू देम। उनको बोलिए, अगर कभी आकर के आपको कोई भी कहे, हस्बैंड कहे सुनो एक बात समझ नहीं आ रही, अच्छा बताओ ना, पूरा ध्यान से सुनिए, आंखों में आंखें डाल के। वैसे मैं हस्बैंड वाइफ के सेशन में ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कराती हूँ कि थोड़ा आंखें में आंखें डाल के, रहमान बहुत स्माइल कर रहे हैं, हाँ बहुत जरूरी है आंखों में आंखें डाल करके अपनी वाइफ को देखना। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक से थोड़ा अलग है, बट स्टिल आई विल शेयर। और मैं आपसे पूछती हूँ
कब से अपनी बीवी की आंखों में आंखें डालकर या कब से अपनी पति की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा? ऑनेस्ट आंसर अगर आप देंगे तो पता नहीं कब देखा था। मैं जब ये सेशंस कंडक्ट करती हूँ कपल ट्रेनिंग के, तो लोग मुझे कहते हैं मैडम सगाई के बाद देखा था, शादी के बाद 5-6 महीने देखा था, फिर अब नहीं देखा, बहुत दिन हो गए। दोस्तों, आई एम टेलिंग यू वन थिंग एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू फॉर दैट, एक बार इमोशनल होकर के एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखिए, जब आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, राइट? टीवी चलता हुआ नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए, आई एम टेलिंग यू, सिर्फ आप एक शुरू में तो बहुत हंसी आएगी, एक दूसरे को देखेंगे, थोड़ा आंख फाड़ करके भी देखेंगे, हंसी आएगी। आफ्टर 2-3 मिनट्स अगर आप कंटिन्यू करेंगे एक दूसरे को देखना, तो आपको आपकी आंखों में आंसू आएंगे। I have tried it and you try it. You will feel कि yes, यूं तो हम पास ही हैं, साथ में रहते हैं, पास में रहते हैं, सब कुछ पता है, पर कब देखा था मैंने मेरी बीवी को या मेरे हस्बैंड को, या मैंने उनसे कहा था कैसे हो? अपन दोनों को एक साथ देखने का था। हाँ, कब देखा था, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हस्बैंड वाइफ बहुत सारा समय नजदीक में गुजारते हैं, राइट? बहुत अच्छा टाइम, बहुत रोमांस करते हुए भी गुजारते हैं, बट एक दूसरे को दिल से देखना शायद बहुत कम हो गया है, राइट? और अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ यहाँ पर, इस वाईफाई लाइफ में एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, राइट? पहले मैं हमेशा अपने सेशंस में जब भी जिंदगी के ऊपर सेशन लेती थी तो मैं कहती थी हमारी जिंदगी में बहुत साल पहले शाम हुआ करती थी, राइट? सबके घरों में शाम होती थी, जब हस्बैंड घर आते थे वाइफ इंतजार करती थी। अब मैं तब ये कहती थी, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मैं कहती थी कि अब शाम नहीं होती है, सीधे रात ही होती है, क्योंकि लंच के बाद में हस्बैंड्स रात को ही आते हैं, शाम को कोई नहीं आता। लेकिन ये वाईफाई जिंदगी ने ये जो समय से घर आने में शाम होना शुरू हो गया है घर में, राइट? शाम को एक साथ बैठना शुरू कर देना, आप उस शाम को कितना खूबसूरत बना सकते हैं वो अपने हाथ में है। ऑलराइट, चलिए फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक्चुअली बातें बहुत सारी हैं, ये टॉपिक बहुत दिल के करीब है, लेकिन समय की पाबंदी है। ऑलराइट, सो वी हैव टू ईट टुगेदर एंड लिसन टू ईच अदर, रीड ऑफन विद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। बहुत आश्चर्य लगता है, बट यस फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है तो हमें अपने बच्चों की लाइफ में एंटर होना पड़ेगा। नाउ यू विल से कि अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, बच्चों के साथ ही तो हैं, बच्चे तो हमारे पास ही रहते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ये चीज का कब एहसास हुआ, जब मेरे घर में 2 छोटे बच्चे आए। शायद मैंने मेरे बच्चों के साथ में ये एक्सरसाइज उतनी नहीं की थी, बिकॉज मेरी सेकंड बेबी हुई तब तो मैं आई वाज वर्किंग, तो मैं बहुत उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रही थी, बट शायद मैं उसके साथ उतना बैठ करके पढ़ नहीं रही थी। राइट फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई दैट। अब मेरे घर में 2 छोटे बेबीज हैं, उनको लेकर के बैठते हैं तो बहुत मजा आता है। एंड यस, आई हैव स्टार्टेड टर्निंग पेजेस, बहुत सुंदर तरीके से वो बुक्स के पन्ने पलटने लगे हैं अभी। डू कोर्स टुगेदर, घर के काम साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। ये सब आजकल आप कर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट लेके जाती हूँ। स्टार्ट अ हॉबी और द प्रोजेक्ट। यहाँ जितनी लेडीज बैठी है ना, आई टेल देम, आई रिक्वेस्ट देम, जो भी आपकी हॉबीज हो ना, उसको इस समय आइडेंटिफाई कीजिए। एंड स्पेशली पहले लेडीज से कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लेडीज के लिए है। ऑल द मेन सिटिंग हियर, जितने भी यहाँ पर महानुभाव मौजूद हैं, आपकी भी एक हॉबी है। क्या है, थोड़ा सोचिए तो सही, कभी बिजनेस से बाहर निकल के सोचिए। ये वाईफाई लाइफ आपको वो मौका दे रही है कि आप सोचिए कि आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, व्हाट इज योर हॉबी, राइट? यहाँ पर समय कम है, अदरवाइज मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से पूछती क्या है हॉबी, याद तो करो। शायद किसी की सिंगिंग हॉबी है, किसी का डांस करना हॉबी है, किसी की मिमिक्री हॉबी है, किसी की मजे से जोक सुनाना हॉबी। क्या हॉबी है? घूमना फिरना। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हॉबी है, लेकिन लेडीज फिर भी अपनी हॉबीज को कभी कभी जिक्र कर देती हैं। जेंट्स तो शायद बिजनेस की भागदौड़ से बाहर ही नहीं निकल पाते, राइट? घर के मुखिया, मेरा एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, देखिएगा। बहुत ज्यादा उसमें ये बात है कि बहुत लोगों की जिंदगी खूबसूरत बनाते बनाते, पूरे परिवार की लाइफ खूबसूरत बनाते बनाते, हमारे जो घर के मुखिया हैं वो अपने बारे में बहुत सारी बातें भूल चुके हैं, राइट? और वो नेचुरल होना बहुत जरूरी है, मस्ती करना जरूरी है। और वो मैंने जिससे सीखा है, मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, एंड आई लव हिम। पूरी फैमिली मतलब मेरे दिल के करीब है। आशीष,
मिस्टर आशीष पारेख। आशीष मेरा भाई है, राइट? और मैं आपको एक बात बताऊं, उससे मैंने सीखा है कि हर हाल में किस तरह खुश रहना है और अपने आसपास वालों को भी खुश रखना है और किस तरह फुल मस्ती से एंजॉय करना है और दूसरे ही क्षण तुरंत काम में लग जाए। ही नोज द टास्क, ही इज अ टास्क पर्सन, लाइक टास्क ओरिएंटेड आदमी है, लेकिन वो उसमें भी खुशियां दूसरों के लिए भी क्रिएट करते हैं और खुद के लिए भी क्रिएट करते हैं। सो आई रियली, कितना भी कुछ भी टेंशन हो, आई टेल आशीष यहाँ पर चले, चलो, कभी भी ना नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, जेंट्स को बहुत सारी जरूरत है वो रिक्रिएशंस की, वो री एनर्जाइज होने की, वो रिफ्रेश होने की, वो रिचार्ज होने की। लेडीज को आप लोग हेल्प करते हैं रिचार्ज होने में, पर आपको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज खुद को खुश रखना खुद की जिम्मेदारी है। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आते ही रहेंगे, दैट्स ओके। वो तो सब कुछ चलेगा, जैसा आज तक चला है आगे भी चलेगा, राइट? चलिए क्विकली आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टार्ट अ हॉबी और अ प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। गेम्स खेलिए, लोगों के साथ मजे कीजिए, व्हाट्सएप गेम्स खेलिए, जूम पे हाउसी खेलिए, कैसे भी करिए। प्लान अ फैमिली आउटिंग। अभी मैडम कैसे बाहर जाएं यार, बिल्कुल तो मजा नहीं आता। बाहर जाना तो मना है, अभी तो बाहर जाना ओपन हो गया है, बट फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, अभी तुरंत बाहर मत निकलिएगा। वैसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप सब अच्छे से अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। तो अभी तो अपन को घर में जितना रह सके उतना ही रहना है, राइट? ऑलवेज रिमेम्बर, ये भी लाइनें मेरी बहुत सारे लोगों ने कई बार सुनी होंगी, बिकॉज दे आर अटेंडिंग माई सेशंस रेगुलरली। फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो अपने मस्त स्वभाव में व्यस्त, जो अपने स्वभाव में मस्त हैं, सेहत का रखे काम, सेहत का रखे ध्यान, और जो स्वस्थ हैं, जो अपने स्वभाव में मस्त हैं, सेहत का रखे ध्यान और जो स्वस्थ है, उसके पास इस समय समस्त है। याद रखिए, अगर सेहत अच्छी है और अपने काम में लगे हैं तो आपके पास समस्त हैं। भूलिएगा मत, बाहर यूं नहीं निकलना है। बट फैमिली आउटिंग कैसे करनी है? गाड़ी में सबको बिठाएंगे, मास्क लगाएंगे, शीशे बंद करेंगे, जोर से म्यूजिक चलाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। कोई नहीं रोकेगा हमें। मास्क सबके लगे होने चाहिए, इंटैक्ट होने चाहिए। एंड फ्रेंड्स, उस आउटिंग में भी एक्चुअली मजा आएगा। जरूरी नहीं है ना कार से उतर के आउटिंग करें। हम बहुत बार, मेरे को तो मतलब हेमा मैडम के साथ बैठ के जाएंगे तो और स्पीड में जाएंगे, मस्त दौड़ा करके हेमा मैडम ले जाएंगी और हमको फुल आउटिंग करा करके लेके आएंगी विद ऑल द एंटरटेनमेंट एंड फन। फ्रेंड्स, जहां से भी हो कुछ ना कुछ हमें हासिल करके एंजॉय करना है। क्रिएट अ फैमिली टाइम कैलेंडर। फ्रेंड्स, मैंने भी कोशिश करी है और अभी भी कर रही हूँ। बहुत आसान नहीं है ये फैमिली टाइम कैलेंडर तैयार करने का, बट करना पड़ेगा। जिस तरह हम कैलेंडर में अपने बिजनेस शेड्यूल्स मार्क करते हैं, उसी तरह कैलेंडर में हमें फैमिली शेड्यूल मार्क करना पड़ेगा, तो हम उस जिंदगी को पूरी तरह से अच्छी तरह से जी पाएंगे। प्रे टुगेदर एंड अटेंड वर्कशिप, दिस इज द बेस्ट थिंग। सबसे अच्छी बात है। और फिर से मैं ये बात कहूंगी कि ये बात फिर से मेरी बच्चों ने मुझे सिखाई, राइट फ्रेंड्स? कैसे? हमेशा हम लोग, बहुत सारे लोग साथ में पूजा करते ही हैं। हर एक जन अपनी फैमिली के साथ स्पेशल फेस्टिवल्स के ऊपर, स्पेशल डेज के ऊपर हम लोग साथ में बैठ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन अभी जब मेरे घर में 2 बेबीज आए तो हमें एहसास हुआ कि उनके साथ में जब हमने थोड़ा सा शुरू किया, फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम बहुत नहा धो करके और पूरे उस तरह से पूरा दिया जला करके आरती पूजा करते हैं। नो, सिर्फ मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो टीवी पे हनुमान चालीसा और भजन और सारे स्पिरिचुअल गाने लगा देते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव, माई स्मॉल बेबीज, जो मेरे पोते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दे हैव स्टार्टेड सिंगिंग दोस थिंग्स, राइट? दे हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग। सुबह सुबह उनकी आदत है, वो सिर्फ उस जैसे ही वो शुरू होता है और वो ताली बजाते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं। एंड नाउ आई टेल यू, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो, वी हैव टू वेट। अब हम इंतजार करते हैं कि जब वो उठेंगे। अगर वो देर से उठेंगे तो हम वो देर से शुरू करेंगे, अगर वो जल्दी उठेंगे तो हम वो जल्दी करेंगे। बट प्रेइंग विद चिल्ड्रन एक्चुअली इज कनेक्टिंग टू गॉड डायरेक्टली। बच्चों को साथ में बिठा करके जब हम पूजा करते हैं या जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, तब हम एक्चुअली ईश्वर से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वहीं पे ईश्वर मौजूद हैं, हमारे पास ही छोटे से भगवान मौजूद होते हैं दोस्तों। और हमेशा
हमको लगता है कि सच्ची के, मैं तो मेरे बच्चों को कहती हूँ कि ये मेरे सच्ची के भगवान जी हैं, राइट? भगवान जी तो हैं पर ये मेरे सच्ची के, क्योंकि भगवान जी वहां आकर के बैठे होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये सब चीजों का, ये जो वाईफाई लाइफ है, ये सारी जो चैलेंजेस हैं, कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी बात करेंगे। only a solution is that we need to balance our hi-fi and wi-fi life. दोनों जरूरी हैं। दुनिया खुलने वाली है, बहुत जल्दी हम सब बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी हम सबकी लाइफ फिर से हैपनिंग हो जाएगी, बट वी हैव टू बैलेंस। वाईफाई लाइफ की कुछ खूबियां हमें छोड़नी नहीं है, भूलनी नहीं है, कंटिन्यू करनी है दोस्तों। ये फैमिली टाइम कंटिन्यू करना है, ये कनेक्टिविटी कंटिन्यू करनी है, ये दोस्तों के साथ इस तरह समय गुजारना कंटिन्यू करना है। शायद हम उस हाई फाई लाइफ में अगर वापस चले गए और फिर से हम एक दूसरे से मिलना बंद कर दिए तो वो गलत है दोस्तों। हम हर जगह खुद नहीं पहुंच सकते, बट ये वाईफाई लाइफ हमारे लिए सबको पास लेकर के आ सकती है। टेक मोर रिजुविनेशन डेज, जितना हो सके अपने आप को रिचार्ज और रिफ्रेश करने के ज्यादा दिन रखिए। डर को भगाना होगा, अपने डे को प्रायोरिटाइज करना होगा। मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर वी हैव, जो भी है उसके लिए मुझे ईश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करना पड़ेगा। एंड नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लर्न टू से नो, बट दिस टाइम हमें दूसरों को ना नहीं कहना है। इफ वी वांट टू मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल, वी हैव टू लर्न टू से नो टू आवर ओन सेल्फ। मुझे ना कहना पड़ेगा खुद की बड़ी बड़ी इच्छाओं को, मुझे ना कहना पड़ेगा अपनी बड़ी बड़ी दूसरों से एक्सपेक्टेशन को, मुझे ना कहना पड़ेगा उस लग्जूरियस लाइफ को, मुझे ना कहना पड़ेगा खुद को, और मुझे खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक दुनिया पूरी तरह से वापस कंप्लीट नॉर्मल में नहीं आती है, आई हैव टू से नो टू माई सेल्फ। मुझे मेरी इच्छाओं को सीमित रखना पड़ेगा जैसा मैंने आज रखा है, because all the businesses are really challenging situation. हम एकदम दुनिया खुलते हैं। I'm really talking to children and ladies who are sitting here. घर के मुखिया तो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ ही रहे, बढ़ने ही वाले हैं, और कुछ लेडीज भी काम कर रही हैं, बट हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिट करना ही पड़ेगा। We have to have more fun. Create 1 hour a day to think and relax. अगर 1 घंटा पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 10-15 minutes think about our own self. Do one thing you love to do every day. ऐसा क्या है जो मुझे हर रोज करना पसंद है? मे बी हर रोज मुझे डांस करना पसंद है, हर रोज मुझे गाना गाना पसंद है, हर रोज मुझे कुछ कविताएं लिखना पसंद है। जो भी एक काम, या हर रोज मुझे मतलब किसी को भी जोक सुनाना पसंद है, अपनी मम्मी को प्यार करना पसंद है, पापा से बातें करना पसंद है, whatever, एक वो काम जो आपको हर रोज पसंद हो, and you have to create more family time. Friends, जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से सीखे जाएं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं, और वही हुआ है हम सबके साथ। जिंदगी ने हमें बहुत सारे अच्छे बढ़िया वाले सबक सिखाए हैं। टेक लाइफ एज अ गेम. Always remember, friends, become a good player and your coaches are there for difficult situations. आपके साथ आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपके mentors हैं जो आपको difficult situation में कोच करेंगे। You have to take life as a game, लेकिन गेम में हारना नहीं है। You have to become the best player, a good player, right? Live down to earth. Extremely important. हमेशा हमको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा दोस्तों। जमीन पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आसमान में जरूर उड़ेंगे, लेकिन कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। से योरसेल्फ एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ बिकॉज यू आर अलाइव। हम जीवित हैं, आज हम ये सब बात कर रहे हैं। Isn't it enough to chase our dreams? क्या ये काफी नहीं है कि हम हैं? Yes, we are here. We are here to talk. We are here to listen. We are here to smile. We are here to hug each other. हम हैं यहाँ दोस्तों, एक दूसरे के लिए हम हैं। क्या ये काफी नहीं है अपने सपनों तक पहुंचने के लिए? Friends, nature makes some rules. And if we are breaking those rules, हम देख चुके हैं क्या होगा. So please don't try to break them. If we'll do so, we will only suffer. आज हम ही सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। कुदरत के साथ कभी पंगा नहीं लेने का, राइट? हमेशा कहते हैं हम कुछ भी झेल सकते हैं, लेकिन कुदरत को नाराज किया तो हमें वो नाराजगी हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगी।
Friends, our life is very, very beautiful. Always remember, your present situation is not your final destination. ऐसा नहीं है कि यूं ही रहेगा. No, it will change. जो चीज इंसान को चैलेंज करती है वही इंसान को चेंज करती है. आज हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं दोस्तों. यहाँ पर एक बात कहूं, परिवर्तन अनिवार्य है, हम सब ने कहा है. और यहाँ तक कि अगर पानी को भी तैरना है, हम सब पानी पे तैरते हैं, राइट. लेकिन पानी को तैरना है ना, तो उससे बर्फ बन के तैरना पड़ता है. दिस मच चेंज इज रिक्वायर्ड. इतना चेंज हमको होना पड़ता है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग. वो हमारा फाइनल सिचुएशन ऐसी ही रहेगी वैसा नहीं है, बट वी हैव टू चेंज our thought process, we have to change ourselves because the best is yet to come. अब आने वाला है सबसे खूबसूरत पल, तो अभी ही आने वाला है. If life gives you 100 reasons to cry, show life that you have 1000 reasons to smile. बहुत सारे कारण है हमारे पास स्माइल करने के. इस समय मुझे सौरभ दिख रहा है, सौरभ की स्माइल मेरे लिए एक कारण है स्माइल देने का, राइट. Isn't it amazing? छोटे छोटे ढेर सारे रीजन है हमारे पास खुश रहने के, बट दैट इज अगेन खुद को खुश रखना खुद की जिम्मेदारी है दोस्तों. हमेशा याद रखिए, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. वी हैव टू लव इट, वैल्यू इट, एंजॉय इट. दिल से कहना है, डियर जिंदगी, आई लव यू जिंदगी, और हमेशा तुम्हें इसी तरह से प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा. और लास्ट में एक छोटी सी पोयम मेरे कुछ दोस्तों ने अभी 2 दिन पहले सुनी है, बट मेरे बहुत दिल के करीब है, तो आपसे कहना चाहूंगी, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो. जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो. कोई रूठा है तुमसे, अरे उसके इस अंदाज में भी खुश रहो. जो लौट के नहीं आने वाले, उन लम्हों की याद में खुश रहो. कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो. खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो. अरे क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में भी खुश रहो. छोटी सी तो ये जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो. लव यू ऑल, लव यू जिंदगी, एंड थैंक यू सो मच JCI Surat Citizen and my all JC friends for giving me this wonderful opportunity to interact with you. Thank you so much Rehman for a wonderful follow-up. Thank you so much Amit Bisani, everyone, all my friends for your presence here. Thank you very much. Over to you. Yes. थैंक यू सो मच मैम. अमित सर नहीं दिख रहे मुझे कहीं पे, तो मैंने हैंड ओवर ले लिया अपने आप. So thank you so much for the wonderful session. बहुत ही खूबसूरत चीज जो See, I would appreciate अगर थोड़े से वीडियोस मुझे दिखे, मतलब I can see सारे नाम, चेहरे दिखे, yes. चेहरे दिखे, yes. हाँ, Thank you Ashish. Ashish Agrawal is also here. Thank you so much. Right, my sister Shalini is also here. Thank you so much. Ashish Parik, मेरे भाई राजा, thank you so much for your presence here. Great. Super. Maybe see if you can open your video. It's no force, but I like it gives me energy and enthusiasm. अगर मुझे आपके चेहरे दिख रहे हैं तो. एक्चुअली आज स्पेशली चेहरा दिखाने के लिए मैंने तेल वेल लगाया, मतलब मैम को थोड़ा प्रेजेंट अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो मुझे भी मौका मिलेगा. Thank you Mukesh bhai. Great to see you here. Hi Amit. Yes, Amit is here. तो थैंक यू सो मच. अभी मौका बहुत अच्छा है, मेरे पास 40 लोग अभी भी हैं, और एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे 55 लोग हमारी इस मुहिम को जुड़ चुके थे. और ये सारे जो लोग अभी अवेलेबल हैं, इनको मैं थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कल हमारे पास 4 बेहतरीन और ट्रेनिंग है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ट्रेनिंग हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे, और लिंक ग्रुप में आ जाएगा, जहां से भी आपको कलेक्ट करना है वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं. फेसबुक पे हमने अपलोड कर दिए हैं लिंक सारे. उसके बाद हमारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है. 3 बजे मिस्टर भटनागर, जो कि लड़के हैं मीनाक्षी मैम के, सिद्धार्थ भटनागर, वो ले रहे हैं हॉट एंड कोल्ड द बिजनेस के ऊपर पूरा सेगमेंट है कि अब गरम तवे पे रोटी सेकनी है या ठंडे तवे पे आटा बेलना है, समथिंग लाइक दैट. तो वो है. और लास्ट में जो यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनर हैं, उनके मेंटोर
बिंदु मैम, उनका एक सेशन हमने रखा हुआ है सेम टाइम, शार्पन योरसेल्फ। तो बेहतरीन हमने सेशंस रखे हुए। मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से कि आप इसे ज्वाइन करें, देखें, समझें, और कुछ इम्प्लीमेंट अगर हमारी लाइफ में हो जाएगा तो विल डेफिनेटली चेंज अवर लाइफ। और हम दूसरों की लाइफ को चेंज करने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तो दैट व्हाट अबाउट JCI डूइंग। JCI जो खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है, थैंक यू सो मच। वो गुजराती में कहावत है, जाग्या त्याथी सवार। हालांकि मैम से मैं तो 4 साल से जानता हूँ, लेकिन मैंने ज्वाइंट अभी JCI अभी की है जस्ट। तो मैं अब you're जाना doing तो मैंने very ज्वाइन well. कर लिया। You are really doing well, Rehman. थैंक Great. यू सो Proud मच of मैम, you. थैंक यू सो मच। एंड अमित सर अगर कुछ कहना चाहते हैं, आशीष सर हमारे जो मेंटोर है हमारे JCI सूरत सिटीजन के, मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। छोटू भाई है, रेनू मैम है, भावेश भाई है, सौरभ भाई है, सतीश भाई है, जो भी इन लोगों ने, जितने भी मतलब 40-50 लोगों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन थैंक यू सो मच कि अपनी लाइफ को जो मोस्टली जो टाइम है ना उसको यूज करने का जो आपने डीजल लिया ना, यहाँ पे आप अपना सक्सेस का पहला कदम चढ़ चुके हैं। तो सक्सेस मिलने के लिए 2 सेकंड भी लगते हैं कभी कभी। वो पता है ना, यूट्यूब का वीडियो कब कौन सा वायरल हो जाए पता नहीं चलता, कहाँ कि लाखों लोग Rehman, आपको if फॉलो करने anyone लग can जाए। give, if anyone wants to add something, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर इस टॉपिक में कुछ अच्छा ऐड कर सकें। सुपल इज ऑल्सो देयर, वेरी स्माइलिंग, मेरी बहुत लाइक फेवरेट बच्ची है एंड वेरी टैलेंटेड गर्ल। एनीवन वांट्स टू ऐड तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा रहेगा। सौरभ इज हियर। सुपल मैम, मैं नाराज हूँ एक्चुअली, अभी तक एक्टिव है नहीं। अगर एक्टिव नहीं हुए तो कुछ स्ट्रॉन्ग डीजल लिए जाएंगे। मैं ऐसे ही क्योंकि अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो थोड़ा मुझे हार्श होना पड़ेगा। सॉरी अगर कुछ बुरा लगा हो तो। बट जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसा लोग समझते हैं। उतना ही आसान है जितना लोग समझते हैं। प्रॉब्लम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब समझने लगेंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो दिस इज दैट इज 10 बज गए हैं, 10:02 हमने प्योर 1 घंटा लिया है। तो विथ परमिशन अमित सर से परमिशन के मैं अब थैंक्स नोट के लिए अपील करूं। तो डॉक्टर कृष्णा हमारे पास है। I Hello. would also like to add something if Yes, I'm please. allowed to. Okay, hello ma'am. So I did not have plans to join for this session because I like some of my family members, some of our relatives, close relatives have passed away, and we were not in the situation to. But I don't know. Today Saurabh bhai called me ki about the love you zindagi jo topic hai, and so I was मेरी आवाज से भी आपको दर्शना जी आपका साउंड नहीं आ रही है, सम नेटवर्क चैलेंज में भी। आई थिंक सम नेटवर्क इशू है। इफ यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो देन वी कैन हियर यू। एग्जैक्टली, some network challenge, but I think she is disconnected. okay, She not an might issue. join back in. So we are go ahead, आगे चलते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोग एवरी सैटरडे लेकर आने वाले हैं विथ ब्लेसिंग्स ऑफ मीनाक्षी पता चल रहा होगा that how tired. Okay, yes Darshana, if you want to complete then you can. Yes, I want to thanks everyone कि आपने इतना वैल्यूबल अपना टाइम दिया, वो भी नाइट के टाइम में। और आई होप कि कल की ट्रेनिंग भी हमारी इसी तरह जारी रहेगी और आप सब आएंगे और हमारा पूरा सेशन अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्चुअली Rehman, I feel दर्शना को एक बार ट्राई कीजिए। yes Darshana, you can. Am I audible? Sorry, I got a call. Yes. Yes. So ma'am, मतलब because of whatever the situation was, मतलब planning नहीं था session join करने का, क्योंकि I have been through some deaths in my family, so that is why we were running a little busy. लेकिन सौरभ भाई का call आया था and
मतलब तो उन्होंने बस जब द टॉपिक लव यू जिंदगी, आई थिंक दैट ड्रोव मी. एंड ऑनेस्टली व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन द सेशन, सो आई डिड नॉट हैव, मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ब्यूटीफुल होगा. एंड ग्रेजुअली बहुत सारी चीजें जो आपने मतलब बताई, आई थिंक ये हमें बहुत पता होती है लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती है. और मतलब since when you had put the eye light on that, तो इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि मतलब ये सब चीजें हमारे सामने ही थी लेकिन हमने कभी रियलाइज ही नहीं करी. मतलब आई थिंक दैट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था. एंड मतलब वो सेशन ग्रेजुअली इतना ज्यादा अच्छा और इतना ज्यादा एम्पलीफाई होता गया दैट मतलब 10 भी बज गया तो मुझे लगा मतलब तभी इतना ही टाइम और उसमें इतना सब कुछ आपने बता दिया ऑलरेडी. Thank you So so I'm much, really Darshana. glad. Thank Thank you, ma'am. I'm glad that I was a part of this. Thank you so much. Really, thanks to you for sharing this. This is very important for all of us. See, everyone is facing challenge. Thank you so much. Thank you very much. मैं कुछ बोलूं? Yes, please. हाँ, तो मैंने तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखा. जो आपकी स्लाइड में 3 पार्ट था, वाईफाई और डाउनलोडिंग और बैटरी. सो बैटरी चार्ज रखना अपने हाथ में है, लेकिन ये वाईफाई और डाउनलोडिंग अगर सही तरीके से नहीं होगी तो लास्ट के 10 मिनट में मैंने जो मिस किया ये होता रहेगा. सो वी हैव टू बी कनेक्टेड, वी हैव टू बी ऑलवेज इन द एक्सेप्टेबल मोड. मैंने लास्ट के 10 मिनट मिस किया. मैं एंटायर फैमिली सब साथ में बैठ के हम सुन रहे थे, लेकिन सब डिस्ट्रेस होके उठ गए कि क्या यार ऐसा सेशन हम लोग को उठना पड़ रहा है बीच में से, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टिविटी. Okay. Yes, but I believe Rahman is recording the session. That's great. Yeah, Rahman, yeah, I it is. also would need that recording to improve myself wherever. So, Supal, yes. Yes, a very good evening, ma'am, and to everyone. At the outset, a big thank you, Rahman sir, Saurabh bhai, and Amit sir. Always, it's a pleasure. You know, a wonderful event always is set up. And yes, ma'am, I think मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको सुनना really it's a privilege और बहुत ही inspire होती हूँ मैं हमेशा जब आपको सुनती हूँ. So big thank you to you. I'm so happy that I was able to get such a lot of ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एक ट्रेजर बॉक्स आप मैम लेकर आती है और सारे जो लाइंस के साथ द वे यू गिफ्ट अस समथिंग व्हिच इज इनक्रेडिबल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम so glad that today I was able to witness that once again. Thank you so much. Sweet. Thank you, Supal. And Amit, you must be knowing Supal is an amazing trainer, huh? ये तुम्हारे चैप्टर का बिल्कुल एक मिस ही करते हैं. नहीं, मतलब you should take advantage. She is amazing trainer and क्या बोलती है वो बोलती है तो हम सबको सुनना हमारी मजबूरी है. She is like that. पर मैम ये तो आपकी शक्ल पोस्टर पे देख के वो आई है, वरना हम तो उसकी शक्ल को तरस गए. नहीं सर. My God. Okay. वैसे मैम, there is one more beautiful thing that I would like to share, that it is such an inspiring organization. आज जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, सतीश राजमने सर is a friend with us for quite a long time. बट जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ही इज अ पास्ट जोन प्रेसिडेंट, एक अलग ही रिस्पेक्ट लेवल रेडी हो गई. एंड लुक एट हिम, दोपहर का सेशन उन्होंने अटेंड किया. उन्होंने सामने से मुझे बोला कि यस अमित, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज हियर फॉर द एंटायर सेशन, इज हियर टिल नाउ. सो सतीश भाई, कैन वी हैव समथिंग फ्रॉम यू? Yeah, thanks Amit for inviting. And Meenakshi, it was a lovely session. I am also a national trainer, but not so active. Well, after being a past zone president, I was part of the Rotary. I'm also in the Rotary. I'm a trainer in the Rotary. So our Rotary is, our district is Goa, Maharashtra, Karnataka. And also I'm part of BNI. So I'm in 3 organizations. So all right. Yeah. So tino mein I'm dividing time, but of course now I'm like during the second lockdown, I'm going back to JSS, like more of trainings. I'm missing that. Actually, JSS is something like in the earlier days I should tell everyone straight away. Like JSS is a selfish organization, I should tell everyone. Because why? Because this is what we learn. It's a self-development organization. So I should tell everyone simple way. Like of course, Rotary we do social service, but then this is the training what we have gotten today. And in today's time, like what training you have given was excellent, because each one of us are losing close friends, relatives, and being keeping positive is very important. And your training was excellent. And the topic "Love You Zindagi" is what attracted me. The most, I said I have to attend this. Thank you. It was a lovely one. Thank you so much, Satish. I'm very much motivated with that. It was very nice. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Yeah. I want to say something to Meenakshi ma'am.
मैं अभी जस्ट स्टार्ट मतलब JCI में अभी जस्ट ज्वाइन किया है, मेरा स्टार्टिंग है। आज मैंने पहली बार आपका सेशन अटेंड किया है। टॉपिक का नाम सुन के ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अटेंड करना ही है। मतलब लव यू जिंदगी, तो जिंदगी के बारे में कुछ है, क्योंकि आजकल का हमारा शेड्यूल ऐसा हो गया है कि जब बस जॉब करो, घर पे आओ, बस काम करो, ऐसा। बट हमारी लाइफ के बारे में हम शायद भूल ही गए हैं कहीं ना कहीं पे कि एक्चुअली हमें करना क्या है। 24 आवर्स सिर्फ हम काम पे ही निकालते हैं, उसमें से एटलीस्ट 1 आवर हमें हमारे लिए निकालना है और सोचना है कि हमें आगे करना क्या है। तो आज का आपका जो सेशन था वो सुन के मुझे अच्छा लगा कि नहीं, कुछ तो सोचना ही है अपने बारे में और आगे बढ़ना है, ऐसा। Yes, thank you so much, Krishna. And actually, that is what required, and JCI is providing us all the opportunity And for that. आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि हम सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में कनेक्टेड है, लेकिन उसमें हमारी लाइफ कैसे कनेक्टेड है वो आज आपने हमें बताया। सो थैंक यू सो मच। Thanks for your so beautiful observation. I would say, Amit, आपके चैप्टर में बहुत अच्छे लोग हैं, like you have amazing people in your chapter. And I can see Shraddha also. Shraddha is also part of your chapter. That is amazing. मतलब नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली आज मैं एज अ गेस्ट आई हूँ, अमित ने मुझे बताया था और मैं आपको सुनने का मिस नहीं करना चाहती थी, तो जस्ट मैं यहाँ पे आई। So sweet, श्रद्धा herself is a leader. मतलब यहाँ इतने लोग ऐसे, श्रद्धा एक सेशन ले तो सारे लोग एकदम मतलब ऐसे हो जाएंगे, ओ माय गॉड व्हाट इज शी। उसकी अगर अपनी ही वो थोड़ा सा शेयर कर देगी दैट व्हाट हैज शी डन, तो उसी से हम इतना सीख लेंगे। सो यू हैव अमेजिंग पीपल इन योर चैप्टर। लाइफ जर्नी, yes, her life journey is very inspiring, very amazing. It is so inspiring. श्रद्धा इज ऑलवेज, सब पूरे सारी दुनिया को इंस्पायर करती है श्रद्धा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस श्रद्धा। शी इज अ सुपर वुमन। मिस्टर सतीश जी, आपको मैं एक बात बताऊं, श्रद्धा को जरूर हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे यहाँ पर। डांस इंडिया डांस, राइट, बहुत पहले एक टीवी शो आता था जिसमें जो हमारी सूरत की शान मतलब श्रद्धा शाह, शी वाज डिक्लेयर्ड लाइक सुपर मॉम। सुपर मॉम जो मॉम्स के लिए कॉन्टेस्ट था, एंड शी वन दैट कॉन्टेस्ट विद द 3 months ओल्ड बेबी। 3 महीने के बच्चे के साथ उसने वो कॉन्टेस्ट जीता था। सो वी आर सो प्राउड ऑफ हर, सो प्राउड ऑफ हर। श्रद्धा मैडम को देख के ही अपने आप दूसरे लोगों में और लाइफ में श्रद्धा होनी शुरू हो जाती है। क्या बात है मुकेश भाई, थैंक यू। मतलब वो वही है कि श्रद्धा पे हमेशा श्रद्धा रखो, तो शायद ऐसा हो जाए कि अगर आप नॉन डांसर है तो भी आपके पैर थिरकने लगेंगे। मैडम पूरी श्रद्धा से तुम्हारा ऊपर। थैंक यू। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। नाउ वंस अगेन थैंक यू ऑल, थैंक यू। पास्ट प्रेसिडेंट भावेश भाई भी यहाँ पर बैठे हुए, विशाल, थैंक यू सो मच, and everyone, all of you. Thank you, Mamta, for your constant listening, itna patience listening. Mamta is also a wonderful trainer. Thank you so much, everyone. Ashish bhai, Bindu, Hema, everyone is sitting here. अभी सभी धीरे धीरे से अभी अपन लोग वापस मिलना शुरू होंगे। So let's hope for the best. फिर मिलते हैं। Thank you so much. नमस्कार। So guys, bye bye, take care, good night everyone. भूलना मत, कल 11 बजे, 11 से 12, 1 से 2, 3 से 4 और 9 से 10 हम लोग फिर से अपनी लाइफ को और ज्यादा एनर्जेटिक करने वाले हैं। तो ईच एंड एवरीवन, जिसको भी लिंक चाहिए वो प्लीज कांटेक्ट कर ले अपने, जिनसे आज मिली है कल भी उनसे मिल जाएगी। तो टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, अल्लाह आपको खुश रखे और सेहतमंद रखे, कोरोना से बचा के रखे और दूसरों को कोरोना से बचने की तरबियत देने की ताकत दे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।